We have to finally be clear-eyed about the sort of man Trump is and treat him accordingly. He is a bully. He thinks he can grab whatever he wants using force if necessary. And he is corrupt. The most corrupt president the United States has ever seen. और अमेरिका को आंखों में आंख डाल के पहली बार अगर किसी ने चैलेंज किया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। उसके बाद से धीरे धीरे जो देखिए जो कुछ इंडिया के साथ हुआ, इंडिया भी बड़ा परेशान था। फिर जो दूसरे मुल्कों के साथ हो रहा था, नेटो के हवाले से वो जिस तरह के बयान दे रहे थे, वो भी परेशान कौन थे। लेकिन अब जो मामला है, इसने ट्रंप को एक्चुअली मजाक बना दिया है। अमरीकी साम्राज्य अब खत्म हो चुका है। मोदी साहब ने ट्रंप साहब की ख्वाहिशात पूरी नहीं की। ट्रंप चाहते थे कि पाकिस्तान भारत जो जंग हुई थी मई में, उसको खत्म कराने का क्रेडिट उनको दिया जाए। ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनके जो लीडर्स हैं ना, बिहाइंड द बैक ऑफ ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप की पीठ के पीछे उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। उनको अपनी इज्जत रास नहीं आ रही। अमेरिका अब हैवान हो चुका है। तो जब इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर एक बड़े ताकतवर मुल्क का लीडर बच्चों की तरह नाराज हो जाए, और फिर आप देखें ना उन्होंने नोबेल प्राइज के मामले में जो किया। सफारती ये लेवल आ गया आपका। वो टेक्स्ट रिलीज कर रहा है मक्रॉन को लेकर, रूट को लेकर कि किस तरीके से वो लेटे हुए हैं बिल्कुल उसके सामने। अमेरिका से आपने जो हाथ मिलाया, पंगा लिया है ना, ये आपको टाइम बताएगा। अमेरिका तो ग्रीनलैंड का नहीं हुआ, नेटो का नहीं हुआ, आपका हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें दबाव बनाती हैं, तब असली नेतृत्व कैसा दिखता है? पिछले कुछ समय में हमने देखा कि कैसे धमकियां दी गईं, कैसे शब्दों से तीर चलाए गए और कैसे झुकाने की कोशिशें हुईं। लेकिन भारत अपनी जगह डटा रहा। यह सिर्फ राजनीति नहीं, यह आत्मसम्मान की कहानी है। जब फैसले डर से नहीं बल्कि सिद्धांतों से लिए जाते हैं, तब इतिहास बनता है। और अब वही कहानी आगे बढ़ रही है, क्योंकि जो तरीका कभी भारत पर आजमाया गया था, वही आज दूसरों पर भी आजमाया जा रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, दुनिया अब क्या जवाब देगी? President Trump is acting like an international gangster, threatening to trample over the sovereignty of an ally, threatening the end of NATO altogether, and now threatening to hit our country and 7 European allies with outrageous, damaging tariffs unless he gets his hands on Greenland. This is an incredibly grave moment for the United Kingdom, Europe and our world. Without provocation or justification, the President of the United States is attacking our economy, our livelihoods and our national security. Trump has put British businesses and jobs on the front line in his unprovoked aggression. The only people cheering him on are Vladimir Putin and Xi Jinping. Only a few months ago, Trump hailed the special relationship at Windsor Castle. Now, thanks to his actions, it is nearly in tatters. So how do we stop Trump's damaging trade war? For a year now, Madam Deputy Speaker, the Prime Minister has tried a policy of appeasing Trump, flattering him, fawning over him, refusing to stand up to him, because, he argued, otherwise Trump would hit us with damaging tariffs. Well, the Prime Minister has tested his approach to destruction. It has failed. It is time for the government to change course. We have to finally be clear-eyed about the sort of man Trump is and treat him accordingly. He is a bully. He thinks he can grab whatever he wants using force if necessary. And he is corrupt. The most corrupt president the United States has ever seen. So there are only two ways of getting him to back down: bribing him with a new jet perhaps, or a few billion in his crypto account, or standing up to him like we would with any other bully, standing together with our European allies to make him back down. That's the choice. ऐसा होता है कि आप लोगों ने सिस्टमैटिकली क्या किया है कि आपने अपनी आवाम को, अपनी पॉपुलेशन को, अपने लोगों को आपने इंडिया के खिलाफ भर भर के भड़का के आपने 1 2 नहीं 3 3 नस्लें 4 4 नस्लें जो है ना पुश्तें अपनी
आप लोगों ने एंटी इंडिया, एंटी हिंदू हेट्रेड के ऊपर ही आपने पैदा कर रखी है। आपके पास यूनाइट कर रखने के लिए पाकिस्तान को सिवाय एंटी इंडिया हेट्रेड का और रेटोरिक के कुछ नहीं है। ये हर बार जो है ना, कोई बलोच खड़ा होगा तो बोलेंगे ये इंडिया का एजेंट है, कोई पख्तून खड़ा होगा ये इंडिया का एजेंट है, कोई सिंधी खड़ा होगा ये इंडिया का एजेंट है, कोई अफगान अगर इंडिया की बात करेगा बोलेगा इंडिया का एजेंट। और इंडिया भी नहीं बोलना आता आप लोगों को, इंडिया प्रोनाउंसिएशन मतलब आपकी उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी सर ये मतलब ई समझ से में लिख आता रहे बोलते थे हैं। और सर ये ई से लिख रहे थे और ये आसिफ गफूर साहब के जमाने में ई से लिखना शुरू किया था और उसका मतलब वो मतलब इंडिया को खत्म कर देंगे, इसलिए उन्होंने ई से, जो मुझे जहां तक समझ आई है वो इस तरह से लिखा जा रहा था, वो अभी तक चलता जा रहा है। तो हो गया, कर लिया आपने खत्म। नहीं, मैं कह रही हूँ गलत हो रहा था, लेकिन उस जमाने में ये सब चलाया गया। आप आई का ई बना के देश खत्म कर लोगे? नहीं, आप आई का ई बना के देश खत्म कर लोगे? गजब ही लोग हो यार वैसे, मतलब इतनी घटिया सोच है यार, मतलब इससे आगे तो तुम बढ़ ही नहीं सकते। उनको पता है यार हमारे पल्ले तो कुछ है नहीं, कर तो कुछ नहीं सकते सर, पाकिस्तान में भी इस बात को पसंद नहीं किया, बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में भी इस चीज को पसंद नहीं किया, उनको नहीं अच्छा लगा था कि इस तरह से क्यों बोला जा रहा है या लिखा जा रहा है। कितने लोग गिनना शुरू करो, चलो गिनाओ, उंगली पे गिनते हैं कितने लोगों ने पसंद नहीं किया, सर नाम लो। बहुत लोगों ने। अरे छोड़ो ना आजू जी, अब सर मैं लिस्ट का से आपको बताऊं, लाऊं, लेकिन आप लोगों को यकीनन मानोगे ना, आपने जैसे पहले पूछा, पहली चीज तो ये था वेस्टर्न वर्ल्ड ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनके जो लीडर्स हैं ना, बिहाइंड द बैक ऑफ ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प की पीठ के पीछे उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। ठीक है? आसिम मुनीर का 5वां तारा लगा, मैं तो कहा 6वां भी लगा दो उसको। लोग उसको क्या मानते हैं आसिम मुनीर? व्हाट डू यू थिंक? यू आर ऑल यूज एंड थ्रो। और मैं फिर बता रहा हूं कि ये जो आपके फौजियों की मौत का सौदा कर रहा है, हाँ, अगर आपको डॉलरों के लिए अपनी एक पूरी नस्ल बर्बाद करना मंजूर है तो कर लो, पर हकीकत यह है कि आरजू जी, टाइम इज रनिंग आउट फॉर पाकिस्तान। सच्चाई ये है कि टाइम इज रनिंग आउट फॉर पाकिस्तान। आपने जो डबल गेम ईरान के साथ खेली वो ईरान को पता है, अफगानों के साथ जो डबल गेम आपने खेली वो अफगानों को पता है, हमारे साथ जब से आजादी हुई 47 से लेके आज तक जो दुश्मनी आप निभा रहे हो वो हमको भी पता है। एक हिस्सा तो काटा आपका बांग्लादेश। अब पाकिस्तान वाकई बचेगा, आपका अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, ये टाइम अलोन विल टेल। पर अब आपने एक उसके अंदर और एंट्री ले ली है, आपने मिडिल ईस्ट की जो राजनीति है, जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है, उसके अंदर आप घुस गए हो। अमेरिका से आपने जो हाथ मिलाया, पंगा लिया है ना, ये आपको टाइम बताएगा। अमेरिका तो ग्रीनलैंड का नहीं हुआ, नेटो का नहीं हुआ, आपका हो जाएगा। कभी और नहीं। एक बक्से में वो मेटल ले जाके दिखा रहा है। यार तू सेल्समैन है यार। दोस्तों, वैश्विक राजनीति में ताकत का मतलब हमेशा शोर नहीं होता, बल्कि संतुलन, धैर्य और स्पष्ट सोच होता है। जब किसी देश पर आर्थिक दबाव, टैरिफ की धमकियां या सार्वजनिक मंचों पर तंज कसे जाते हैं, तब असली परीक्षा नेतृत्व की होती है। भारत ने हाल के वर्षों में यही दिखाया, न उकसावे में आना, न ही अनावश्यक टकराव, बल्कि अपने हितों पर शांत और मजबूती से खड़े रहना। यही कारण है कि आज भारत को केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वासी वैश्विक आवाज के रूप में देखा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह की रणनीति पहले भारत के लिए इस्तेमाल की गई, अब वही रणनीति यूरोपीय देशों के सामने भी रखी जा रही है। फर्क बस इतना है कि अब दुनिया ज्यादा जागरूक है। संसदों में चर्चाएं हो रही हैं, सहयोगी देश सवाल उठा रहे हैं, और यह साफ संकेत मिल रहा है कि दबाव की राजनीति अब हर जगह स्वीकार नहीं की जाएगी। यह बदलाव अचानक नहीं आया, यह उन देशों की वजह से आया जिन्होंने पहले ही दिखा दिया कि सम्मान बातचीत से मिलता है, धमकी से नहीं। आज अंतरराष्ट्रीय मंच पर रिश्ते केवल ताकत से नहीं, भरोसे से टिकते हैं, और यही वजह है कि कई देश अब अपने फैसले दोबारा सोच रहे हैं। यह कहानी किसी एक व्यक्ति या एक देश की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जहां संप्रभुता, आपसी सम्मान और बराबरी को प्राथमिकता दी जाती है। आने वाले समय में दुनिया शायद और भी ऐसे पल देखेगी जहां पुराने तरीके सवालों के घेरे में होंगे और नए संतुलन बनेंगे। अंत में यही कहा जा सकता है कि जब कोई देश बिना शोर किए
लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा रहता है तो उसका असर सीमाओं से कहीं आगे तक जाता है।